Hello students, welcome to our channel Discovery and YCL. In this channel, we provide you the best coaching facility for JEE, NEET and CBSE board examinations. And if you want to get connected with us, subscribe our channel and press the notification button for latest updates. Today we will be starting a new unit which is from the second book, what we call wave optics. So that is something which is extremely interesting in the physics associated with light, that how two light rays interfere with each other. As you have seen that two people interfere with each other, and you have also listened about that two sound waves interfere with each other. What do we understand by an interference? An interference is something which leads to a modification or a change in energy or a change in distribution of energy basically when two light waves interact with each other. So I will start wave optics, and today we will discuss about interference. So that will be the first lecture on interference, and let's start the topic. Wave optics. So what do we understand by a wave? A wave is something which is actually representing a disturbance which is traveling along a particular direction, and as it travels it starts vibrating the particles of the medium, and as the particles vibrate they propagate energy from one particle to another, and in this way the disturbance travels in the medium. So the disturbance can travel in the medium in two ways, and these two ways are, the first one is the longitudinal wave and other one is the transverse wave. लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम पहले से जानते हैं स्टूडेंट्स कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एंड वी हैव पार्टिकल्स लाइक दिस. अगर पार्टिकल जो है स्टूडेंट्स वो रास्ते में इस तरीके से लाई करते हैं, सो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है स्टूडेंट्स. इट मींस द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन और इन द सेम एक्सिस इन विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग. सो दिस इज a longitudinal wave propagation. So disturbance is traveling in x direction and the particles are also vibrating in the x direction. It means that you are getting a longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves, students. And now we will talk about a different type of wave that is also a characteristic of a light wave, that is what we call a transverse wave. Light waves students usually कैसी होती हैं? Transverse waves होती हैं. So we will talk about transverse waves. अब transverse wave का क्या मतलब है? Transverse wave में the same thing happens. Propagation की डायरेक्शन स्टूडेंट्स मैंने ये कंसिडर की है, एज्यूम की है. Then the particles of the medium will vibrate in this direction. Particles इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स मीडियम के. So this is what we call a transverse wave. So light is itself a transverse wave. When light travels in a medium, the particles of the medium vibrate perpendicular to the propagation vector of the light wave. जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स आपका वेव वेक्टर होता है, यानी कि जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन का होता है लाइट वेव के, उसके परपेंडिकुलर ये पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो इस तरीके की वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. बिफोर गोइंग टू the concept of interference, I would like to start today from a very nice concept which actually explained many type of phenomena like interference, polarization, diffraction, reflection, refraction and many more things. That is what we call Huygens principle. So Huygens principle students, हम ये जानते हैं कि किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए यूजुअली एक मीडियम की जरूरत होती है, बिकॉज डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स. वन पार्टिकल वाइब्रेट्स, इट कोलाइड्स विद द अदर पार्टिकल and the other particle also starts vibrating, then it collides with the third particle and it also starts vibrating, and in this way the vibration travels in the medium. So हाइगेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो एक वेव है. He regarded light as a wave. As we know,
at present many of you have an idea that light has dual nature. It sometimes behaves like a particle, which is a photon theory, and sometimes it behaves like a wave that is in reflection, refraction, diffraction, polarization, interference. All these phenomena are due to the wave nature of light. In a different energy domain, it can behave like a photon, and we will also discuss about it in our upcoming lectures. What is the photon nature, or what is the particle nature of light? In this lecture, we are interested in what can we do with a light wave, how do light waves talk with each other, how they interact with each other. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कंसेप्ट के साथ, दैट इज व्हाट वी कॉल अ वेव फ्रंट. एंड इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल. हाइगेन्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड आई मस्ट से वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट्स इन क्लासिकल ऑप्टिक्स, which gave you a very deep insight about all the wave related phenomena starting from reflection and going up to diffraction. So I'll start from what we call a wave front is. So let's see कि एक वेव जो है स्टूडेंट्स वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. सो मीडियम के पार्टिकल्स उसके साथ साथ वाइब्रेट कर रहे हैं. सो ऐसे पार्टिकल्स जो कि एक साथ अपनी मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशंस को रीच करते हैं, एक साथ मैक्सिमम या मिनिमम वाइब्रेशन की लोकेशंस पे आते हैं, या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड एक साथ एक्वायर करते हैं, तो उन सारे पार्टिकल्स को अगर मैं मिला दूं एक पर्टिकुलर सरफेस से, सो दिस सरफेस बिहेव्स लाइक अ वेव फ्रंट. व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट कि सपोज कीजिए कि आप यहां पर एक सोर्स है स्टूडेंट्स, ये सोर्स. सो दिस इज द सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग लाइट. सो दीज आर द लाइट रेज. ओके, ये बिल्कुल वैसी नजर आ रही है स्टूडेंट्स जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एंड यू ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो लेट मी ड्रॉ ए स्फीयर. इसके चारों ओर स्टूडेंट्स इस लाइट सोर्स को मैं पॉइंट मान लेता हूं, इसके चारों ओर एक स्फीयर बना लेता हूं. सो व्हाट डू यू सी? यू विल सी दैट एट एवरी पॉइंट आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को P कह लूं, इस पॉइंट को Q कह लूं, इस पॉइंट को R, S, T, U. इन सभी पॉइंट्स पर आप देख रहे होंगे कि ये सबके सब पॉइंट्स इसी स्फीयर की सर्कमफरेंस पे लाई करते हैं. और ये जितने भी डायरेक्शंस मैंने बनाए एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये सब क्या हैं? इस पॉइंट सोर्स के. यहां पर जो ये सोर्स है इसको मैंने पॉइंट कंसीडर कर रखा है, पूरे के पूरे सोर्स का साइज अभी इररिलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ दिस स्फीयर. तो ये पॉइंट सोर्स है स्टूडेंट्स, अभी दिस होल इज अ पॉइंट. ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ कि आप ये देख रहे होंगे कि ये वेव्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन. देखिए एनर्जी इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है स्टूडेंट्स ये, और ऑब्वियस बात है कि जब एनर्जी प्रोपोगेट करेगी देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टिकल्स. सो इट मींस एवरी नेक्स्ट पार्टिकल व्हिच इज लाइंग आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल विल गेट अ लेसर एनर्जी, क्योंकि पहला पार्टिकल जो कि सोर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, एकदम से ज्यादा एनर्जी मिली उसे. नाउ द सेकंड पार्टिकल विल गेट अ लेसर एनर्जी बिकॉज फर्स्ट पार्टिकल यूटिलाइजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इन द वाइब्रेशन एंड इट कोलाइड्स विद द सेकंड पार्टिकल, एंड द सेकंड पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद सम लेसर एम्पलीट्यूड. वो थोड़ा कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा क्योंकि कुछ एनर्जी, कुछ वर्क पहले पार्टिकल ने वाइब्रेट करने में क्या कर दिया है, कुछ एनर्जी का लॉस कर दिया है. तो वो जो एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहा है दैट बिकम्स लेसर एंड लेसर, और वो आगे जाते हुए एनर्जी क्या करती है, ड्रॉप करती है. तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको कनेक्ट करके देखूं अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कंसेप्ट से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी आपने ये देखा था कि अगर आप कोई पॉइंट चार्ज Q बना लेते हैं और उसके चारों ओर एक स्फीयर खींच लेते हैं, तो इस स्फीयर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स. सारे रेडियस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. और आपने देखा था कि सेम पॉइंट्स में यहां पे बना रहा हूं P, Q, R और S. ओके, ये सभी में 4 के 4 पॉइंट्स मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं जैसे कि आपको यहां नजर आ रहे हैं. यहां पर ये लाइट का सोर्स है, यहां पर ये फील्ड का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स. दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट रेस एंड दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट यू सी कि इन सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल आपको मिलता है वो सेम है. इट मींस ऑल दीज पॉइंट्स हैव द सेम एनर्जी. ओके, सो बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स किसी भी लाइट सोर्स से एनर्जी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है. तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारे डायरेक्शंस क्या हैं, ये डायरेक्शंस बेसिकली इस सर्किल के, जो आपने सर्किल ड्रॉ किया है उसके रेडियस हैं. ओके, सो इट मींस इफ यू विल कैलकुलेट द एनर्जी
जो लाइट इंटेंसिटी आपको इस पॉइंट पे रिसीव हो रही होगी, सोर्स से इसकी डिस्टेंस सेम है स्टूडेंट्स, और सिमिलरली अगर ये सोर्स सभी 3 डायमेंशन में हर जगह इक्वल लाइट दे रहा है, तो ये आप देखेंगे कि इस पॉइंट सोर्स से यहां पर जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे P पर है, क्योंकि P की डिस्टेंस जितनी सोर्स से है उतनी ही Q की भी डिस्टेंस है। सिमिलरली R की डिस्टेंस भी सोर्स से उतनी है, S की डिस्टेंस भी उतनी है, P की डिस्टेंस भी उतनी है, U की डिस्टेंस भी उतनी है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक इक्वल एनर्जी की सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप पॉइंट सोर्स के चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस खींच दें तो उस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट हैं दे आर एट इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दे कैरी द इक्वल एनर्जी, एंड such surface which is drawn around a point charge source is actually representing those particles which are vibrating with same energy, which are vibrating with same energy levels. It means that they are reaching the maxima and minima position simultaneously. एक साथ maximum एक साथ minimum पे जा रहे हैं. There is no difference in their energy at a particular moment. एक particular moment पे अगर कोई पार्टिकल P पॉइंट पे है और एक पार्टिकल Q पे, R पे, S पे, P पे, T पे और U पे, तो इन सारे पार्टिकल्स की जो एनर्जी है स्टूडेंट्स उस दिए हुए मोमेंट पे बिल्कुल सेम है, और सेम है तो इसका मतलब यह है दैट ऑल ऑफ देम आर इन सेम फेज, सभी के सभी सेम फेज में हैं, ये बिल्कुल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम और एक साथ मिनिमम पोजीशंस को एक्वायर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसी सरफेस को जो कि सेम एनर्जी लेकर चलेगी। और बिल्कुल ऐसा ही आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में, जहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी चार्ज अगर इस सरफेस पे रख दिया जाए तो उस चार्ज को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी होगी सेम होगी। इस पॉइंट पे Q डैश चार्ज रख दो बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, ये यहां पर O है तो O और P इस कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी है वही O और Q वाले की भी है, वही O और R की है, वही O और S की है, यहां पर भी तो वही है। यहां सेंटर से लेके P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आपको लाइट मिल रही है वही सेंटर से Q की है, वही सेंटर से R की है, वही सेंटर से S की है, वही सेंटर से T की है और वही U की है। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम वे. At any particular moment, there is no phase difference between them. They are representing the exactly same energy levels. And this surface is what we call a wave front. और इसी surface को हम बोलते हैं wave front. This is a beauty. हमने देखा था, मैंने आपको बताया था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस के कंसेप्ट की बात कर रहे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको यह बताया था कि कहीं पर भी अगर लाइट वेव्स इंफिनिटी से आ रही होती हैं तो हम ऐसी सरफेसेस खींच सकते हैं स्टूडेंट्स जो कि सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये वही बिल्कुल वैसी ही जैसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खींचते हैं, बिल्कुल वैसी ही सरफेसेस आपको लाइट में भी देखने को मिलती हैं। और आप ये देख पाएंगे कि ये सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में कांस्टेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। कोई भी चार्ज अगर इस सरफेस पे रख दिया जाए तो उसकी एनर्जी इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पे सेम होगी। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे बैठे हैं, P पॉइंट पे से आप इस सोर्स की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम विद द इंटेंसिटी ऑब्जर्व फ्रॉम द Q, R, S, T और U पॉइंट्स. So this is how the concept of equal energy surfaces is common in electric field as well as in wavefront theory. So in an electric field, an equipotential surface actually representing a surface which has equal energy configuration at every point. Similarly, in optics, in wave optics, wavefront is representing a surface in which all vibrating particles have same energy level at a particular moment, or they vibrate in the same phase, and that is the beauty of a wavefront. So, इस तरीके से हम wavefront के बारे में ये जान पाए that in a wavefront all particles vibrate in same phase, vibrate in same phase students. Okay, so किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप पॉइंट की बात करते हैं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं स्टूडेंट्स जो कि लाइट का सोर्स है और इसके चारों ओर बनाए स्टूडेंट्स मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, all of them start at any point P, Q, any point R, S, any point,
ऑल दीज, जितने भी यहां पर कोई भी मीडियम का कोई भी पार्टिकल जो इस पूरी सरफेस में कहीं पर भी लाई कर रहा होगा, सेम एनर्जी, दे विल रिसीव द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिकॉज अ point light source is actually producing an equal intensity in 3 dimensions. So you will get same intensity if you draw a surface, a particular sphere of a specific radius around the source light source. Okay, so इसमें हमने देखा कि लाइट सोर्स के चारों ओर जैसे ही आप एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, इस स्फेयर के हर पॉइंट को क्या रिसीव हो रहा है, सेम लाइट इंटेंसिटी, सेम ऑप्टिकल एनर्जी रिसीव हो रही है, और सेम ऑप्टिकल एनर्जी रिसीव हो रही है। इसका मतलब जो भी पार्टिकल्स इस पूरे में वाइब्रेट कर रहे होंगे, उन सबकी एक दिए हुए मोमेंट पे जो एनर्जी उन्हें मिल रही होगी, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, और दे विल रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ वाइब्रेशन और सेम फेज। सिमिलरली एक और, ये भी एक वेव फ्रंट है स्टूडेंट्स, ये भी एक वेव फ्रंट है, लेकिन एक डिफरेंस है इन दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में। मैं इसी पॉइंट सोर्स को आपको आगे बताता हूं, और वहां से हम देखेंगे इन दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सो व्हाट हैपेंस, ये मैंने लिया स्टूडेंट्स एक पॉइंट सोर्स, और ये एक वेव फ्रंट है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द सर्कल। सो इसके पार्टिकल्स ये हैं स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ये पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अपने से आगे वाली लेयर को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आगे वाली लेयर के पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और जब ये कोलाइड करते हैं तो इन आगे वाले पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है, इन पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो अंदर वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगी, बिकॉज द इंटेंसिटी फॉल्स विद डिस्टेंस। इंटेंसिटी जो लाइट की होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इट फॉल्स एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो सोर्स से आप जितनी ज्यादा दूर जाते रहेंगे, आपको सोर्स के जो सबसे क्लोज मिलता है, सबसे क्लोज कहने का मतलब है लाइट सोर्स एनर्जी प्रोड्यूस करते ही सबसे पहले जिन पार्टिकल्स को दे रहा है, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट्स। इनको हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट्स। एंड टू योर सरप्राइज यू विल सी दैट द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन एंड ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। इन सभी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहने का मतलब यह है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के लिए जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट्स के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर एक्टिंग लाइक एनर्जी सोर्सेस फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट में स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सारे पार्टिकल्स की भी एनर्जी सेम है, लेकिन इनको एनर्जी सोर्स से सीधे रिसीव नहीं हुई है। इनको एनर्जी किसने दी है, प्राइमरी वेव फ्रंट्स ने इनको एनर्जी दी है। तो हम ये देख पाते हैं कि सेकेंडरी वेव फ्रंट, उसकी एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी वेव फ्रंट रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरीके से हर अगला वेव फ्रंट जो होगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट के कंपैरिजन में और कम एनर्जी वाला होगा। उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो और लेसर एंड लेसर एनर्जी लेके आगे बढ़ेंगे। दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फॉल्स विद डिस्टेंस, बिकॉज प्राइमरी वेव फ्रंट के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने में कुछ एनर्जी खर्च हुई, इन्होंने कॉलिजन करके आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करी, और फिर वो वाइब्रेट हुए, उन वाइब्रेशंस में कुछ एनर्जी लॉस हुआ, एंड द वाइब्रेशन ट्रेवल्स मोर एंड मोर फर्दर, बट इट फॉल्स इन इंटेंसिटी। उसकी एनर्जी जो है वो क्या करती रहती है, ड्रॉप करती रहती है। तो वेव फ्रंट्स के बारे में हमने ये जाना कि वेव फ्रंट्स वो सरफेसेस हैं जो कि सेम लाइट इंटेंसिटी या सेम ऑप्टिकल एनर्जी या फिर सेम फेज में मीडियम पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई विल ड्रॉ वेव फ्रंट्स फॉर सम स्पेसिफिक सर्फेसेस। अगर आप पॉइंट सोर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पॉइंट सोर्स में जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं, ये देखिए। और जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर दी जाती है। आपने जाना था कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप खींचते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि अगर आप फील्ड का कोई भी, अगर फील्ड की डायरेक्शन आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लेंगे तो फील्ड का कुछ पार्ट कहां काम करने लग जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग, और वो सरफेस पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जब लाइट आगे बढ़ती है, लाइट प्रोपोगेट जब करती है, तो उस केस में भी आप लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को रैंडम नहीं बना सकते स्टूडेंट्स। उसके लिए भी आपके पास चॉइस होती है। जो भी आप क्या करेंगे, जो भी
वेव फ्रंट आप खींचेंगे स्टूडेंट्स, वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वेव का प्रोपोगेशन मतलब एनर्जी का प्रोपोगेशन। एनर्जी का प्रोपोगेशन हमेशा वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपने ले लिया स्टूडेंट्स वेव फ्रंट, लेकिन आपने ये बोला इस वेव फ्रंट पे दो पार्टिकल्स हैं, एक यहां पर है, पी और क्यू। वेव फ्रंट के लिए क्या एप्लीकेबल है? वेव फ्रंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहां पर स्टूडेंट्स आपका सोर्स है, अकॉर्डिंग टू द वेव फ्रंट थ्योरी पी और क्यू दोनों पार्टिकल्स एक दिए हुए टाइम पे सेम एनर्जी लेवल में होने चाहिए, सेम स्टेट में होने चाहिए। एनर्जी कहां प्रोपोगेट कर रही है स्टूडेंट्स? इस डायरेक्शन में। जैसे फील्ड प्रोपोगेट करता है ना, फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में ड्रॉप हो रही है। ऐसी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में ड्रॉप हो रही है आगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि P और Q ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनमें जो दोनों पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो कुछ रैंडम हो जाए, जैसे कि ये, अगर आप एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को ये ले लेते हैं, तो एनर्जी प्रोपोगेशन यानी कि एनर्जी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, यानी कि एक तरीके का लाइट फील्ड का एक पार्ट जो होगा वो कहां काम करेगा? सरफेस के अलोंग काम करने लग जाएगा स्टूडेंट्स। और इसकी वजह से जो यहां पर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इसकी एनर्जी मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि इसको एनर्जी का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मिलने लग गया। इसको एनर्जी का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जो है वो इसके अपने वाइब्रेशन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। तो जो एनर्जी अभी तक प्रोपोगेट कर रही थी, वो एनर्जी क्या करने लगी है? P को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देने लगी है, जिससे P की एनर्जी Q के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, और वेव फ्रंट की एक्चुअल डेफिनेशन जो है दैट इमीडिएटली कोलैप्सेस। तुरंत वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि वेव फ्रंट जो है स्टूडेंट्स, उसमें आप प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, जो लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, यानी कि एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, एक ही चॉइस 90 डिग्री। केवल प्रोपोगेशन के सरफेस जो आपके पास वेव फ्रंट सरफेस है, प्रोपोगेशन उसके साथ 90 डिग्री पर ही हो सकता है। अदरवाइज हर पार्टिकल की एनर्जी जो है वो अलग अलग आएगी, डिपेंडिंग कि एनर्जी फ्लो का कितना कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में काम कर रहा है। और इससे वेव फ्रंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है बच्चों, कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करनी चाहिए, वो डेफिनेशन कोलैप्स कर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। सो दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। 2-3 इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे हमने देखी थी स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम इक्वल एनर्जी की सरफेस लाइट में खींचते हैं, और उस इक्वल एनर्जी की सरफेस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो पॉइंट सोर्स के लिए मैंने आपको बना के दिखा दिया। ऐसे ही अगर सोर्स स्टूडेंट्स इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी पे कोई भी सोर्स होता है स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा, क्लास 10th में हम पढ़ते थे कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ओके, और वो एक तरीके की यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या यूनिफॉर्म एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, सो सिग्निफिकेंस ये है कि वहां से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो एक तरीके की यूनिफॉर्म इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। ऑल्दो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल केस में ये ट्रू नहीं होता, यानी कि कोई भी लाइट रे कभी भी, या कोई भी लाइट सोर्स जो है स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। ओके, लेकिन हम एक छोटे से रीजन के लिए अगर उसे कांस्टेंट ट्रीट करके चलें, तो इनफाइनाइट से आने वाले सोर्स से, इनफाइनाइट से जो रेज आ रही हैं, दे आर रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और they are actually producing a uniform light field. I will give it a name, a uniform light field or a uniform energy flow. तो एनर्जी जो आपके पास यहां है स्टूडेंट्स, एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बट दैट इज यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इक्वल एनर्जी की सरफेस कैसे खींचते थे? परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो यहां पर भी वेव फ्रंट होगा परपेंडिकुलर प्लेन। दिस इज अ ब्यूटी इन ऑप्टिक्स ऑल्सो, बिकॉज we are talking about energy, and energy lives in the base, energy lives in the fundamental. So the fundamentals will be same for every type of theory. So this is something which is representing a wave front in case of what? In case of a source which is at infinity. Let me do one thing more. ये लाइन सोर्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स, घर में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, तो लाइन सोर्स कैसा करेगा? लाइन सोर्स के चारों ओर स्टूडेंट सिलेंडर खींच दो, तो क्या होगा? इस सिलेंडर की सरफेस के सारे पार्टिकल्स जो होंगे स्टूडेंट्स, वो सेम डिस्टेंस पे होंगे सोर्स से,
किसी भी दिए हुए मोमेंट पे अगर आप यहां पर एक और देखिए, मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये देखिए सारे पार्टिकल्स जो कि सिलेंडर की सरफेस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं सोर्स से, तो ये सब क्या है, एक और सिलेंडर बना लूंगा, ये सब जो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, ये सब के सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल फेज में वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर सिलेंडर जो मैंने ड्रॉ किया है एक लाइन सोर्स के चारों ओर, उसमें रहने वाले सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट की। किसी भी दिए हुए मोमेंट पे ना तो कोई पार्टिकल दूसरे से आगे है ना पीछे है, दे आर गेटिंग अपवर्ड्स ऑन द सेम मोमेंट एंड गेटिंग डाउनवर्ड्स, or they are vibrating left on the same moment, they are vibrating right on the same moment. ओके, तो एक ही साथ लेफ्ट जा रहे हैं, एक ही साथ राइट जा रहे हैं, मीन पोजीशन से जो उनका डिस्प्लेसमेंट है किसी भी दिए हुए टाइम पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है दूसरे के साथ। ओके, सो दिस इज अ वेव फ्रंट फॉर अ लाइन सोर्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने यह सीखा कि लाइन सोर्स और आपके पास पॉइंट सोर्स अगर है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा एक और तरीके का सोर्स जिसे हमने सोर्स एट इंफिनिटी कहा, इनकी वजह से वेव फ्रंट्स का शेप क्या होता है। हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किस तरीके से लाइट वेव वैक्यूम में प्रोपोगेट करती है। आप ये जानते हैं कि इन सब वेव्स को, जो भी कंसेप्ट मैंने आज डिस्कस किया है, इन सब में हमको पार्टिकल्स की जरूरत है, लेकिन वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, एंड इसी की वजह से हमको मजबूर होना पड़ेगा एक नया मीडियम प्रपोज करने के लिए, क्योंकि वैक्यूम में भी आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा अगर आप लाइट को एक वेव कंसीडर कर रहे हो, अदरवाइज वेव तो बिना मीडियम के प्रोपोगेट हो ही नहीं सकती। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ हाइगेंस प्रपोज्ड अ हाइपोथेटिकल मीडियम एंड हाउ ही एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो if you like this video, subscribe our channel, share it with your friends, and press the notification button for latest updates. Thank you.